Hello students, this is Meenakshi Gupta. Welcome to Meenakshi Gupta Physics classes. This video I am making for the 11th class students, and in the last video we have studied about the uses of dimensions. As we are discussing the first chapter of NCERT 11th class, so according to the chapter first we have the two things which we have to discuss. That one is the unit and the second is the measurement. I have discussed about the units, and the sub units or the subtopic of the units was dimensions that we have discussed already in the last two videos. In this video we will start the measurement, the second main topic of the first chapter, that is unit and measurement. So let's start with the measurements. Please like, subscribe and share with your friends of this channel so they can also use it and study their subject. So let's go on the measurement. So here we have the measurement. So measurement normally किसको कहते हैं? That you can understand what is called the measurement when we measure the things. If we are talking, I have covered the 10-meter length from going to one place to another. So that 10 meters is called a measurement. You have measured the path of the land, that is 10 meter. Similarly, you can do in the mass or the seconds. Like I have done this work in a 2 minutes. I have done my jumpings in 5 minutes. I have gone through from one place to another within a 10 minutes. So that 10 minute, 5 minute, they all are the measurement. So physics is a science of measurement. I have written measurement in a short M. तो साइंस फिजिक्स जो है वो एक मेजरमेंट का भी साइंस कहते हैं, बिकॉज हियर यू हैव टू डू द लॉट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटली या एक्सपेरिमेंटल थिंग्स इन द फिजिक्स में विच हैव द मेजरमेंट एक्यूरेसी एज यू नो वेल, कि how we can make the devices or what is the time period to continue with the things. Like there's a lots of things that has depend on the measurement or the things. So measurement is a part of doing experiment in science. Measurement जो आता है mainly कहाँ आता है? When we are doing experiment in science में जब भी आप measurement करोगे तो आपका साइंस में जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां पे आपको मेजरमेंट मिलेगा ही. व्हेन व्हाटएवर एक्सपेरिमेंट यू आर डूइंग यू हैव टू राइट द थिंग्स बाय मेजरिंग. दैट यू हैव डन इन योर 10th or 9th maybe. Like whenever you have read the activity in your 10th standard, there will be a measurement like angle of reflection, refraction that you have done in your 10th class. So the result of every measurement by any measuring instrument contains some अनसर्टेनिटी. मीन्स अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो एक्सपेरिमेंटल थिंग्स की करेंगे, कि इफ यू आर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट एंड यू आर यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टू राइटिंग द मेजरमेंट. आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, मैं जो भी इंग्लिश में बोलूंगी मैं हिंदी में भी रिपीट करूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड. आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, वहां से वैल्यू मेजर करी एंड व्हाट यू विल डू, उस एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से वैल्यूज मेजर करोगे और उनको फिर रिटर्न करोगे. ठीक है, तो क्या होता है कि व्हेनेवर वी आर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट और मेजरिंग एनीथिंग फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी आपने मेजर किया तो इट कंटेन सम अनसर्टेनिटी. उसमें कहीं ना कोई मिस्टेक हो जाती है. हम वही मिस्टेक्स को यहाँ पे कम करने की कोशिश करेंगे. इस चैप्टर में मेजरमेंट का मतलब ये कि वी आर डिस्कसिंग मेजरमेंट और एज वेल एज आई कैन से एरर. मेजरमेंट के साथ अब एरर, हमारा जो मेन टॉपिक है मेजरमेंट पढ़ने का, उसका मतलब है कि हाउ कैन वी रिड्यूस द एरर और हाउ कैन वी मिनिमाइज द एरर इन एनी एक्सपेरिमेंट. दैट इज द मेन टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, मेजरमेंट के साथ वी आर गोइंग टू स्टडी द एरर. मेजरमेंट के साथ हम एरर पढ़ने जा रहे हैं. तो दिस uncertainty in measurement is known as error. It is always expressed in percentage. It is always expressed in percentage में इसको एक्सप्रेस किया जाता है. The uncertainty in measurement is known as error. और यहाँ पे हम इसके आगे एरर ही डिस्कस करेंगे कि टाइप क्या होते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं एरर की, और हाउ कैन वी मिनिमाइज द एरर इन एनी एक्सपेरिमेंट. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स गो ऑन द एरर्स. सो हियर वी हैव द एरर्स. एरर्स आर टू टाइप्स, सिस्टमैटिक्स और रैंडम एरर्स. ठीक है, सिस्टमैटिक एरर्स भी 3 टाइप्स की होती हैं. इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन और ग्रॉस एरर. रैंडम एरर्स हो गए चेंज द कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट या फिर इनकरेक्ट जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर. सिस्टमैटिक एरर में अगर मैं इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंटल एरर को एक्सप्लेन करूं तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया कि किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई मिस्टेक हो, लाइक द एरर्स आर ड्यू टू शॉर्ट कमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट, लाइक एरर ड्यू टू डिफेक्टिव अलाइनमेंट, जैसे आपने कोई एंगल बनाया तो वो मिस्टेक कर दी वहां पे, और जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स, ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में, देन यू विल अंडरस्टैंड। और स्क्रू गॉज, स्पैरोमीटर, ब्लैक लैश, मतलब जो एक्सपेरिमेंट या किसी इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होती है दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन में आपका दिस एरर अकर्स ड्यू टू सम इम्परफेक्शन इन द apparatus यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, आपने कोई भी apparatus यूज किया और उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया, दैट इज द एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस एरर हो गया आपका ड्यू टू कैजुअल अप्रोच इन द एक्सपेरिमेंटर, such as improper adjustment of the experiment setup in observation part and computational mistakes, या तो आपने क्या कहते हैं जो कंप्यूट किया वो गलत किया, या जो आपने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया वो मिस्टेक किया। जैसे एक जो पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा T बराबर 2 पाई √ L अपॉन G होता है, तो वहां पे जो लेंथ ऑफ द थ्रेड लेते हैं वो काफी लंबी ली जाती है, बट अब अगर प्रॉपर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता तो व्हाट दे विल डू, they will take a small length of the thread and they will start to doing the practical. And why we take the long length, because we at the doing the experiment we have to ignore the length of that thread, that's why we take the long length 100 centimeter, 200 centimeter, 150 centimeter। अगर आपने इससे 100 से कम सेंटीमीटर की लेंथ लोगे तो वो आपका एक्सपेरिमेंट प्रॉपर नहीं माना जाता, ठीक है। तो दिया उपयोगी क्रॉस एरर। रैंडम एरर्स मोस्टली जो हम करते हैं रैंडम एरर्स को ही बात करेंगे यहाँ पे। तो रैंडम एरर्स हो गई या तो स्मॉल चेंज इन द कंडीशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट पहले आपने किसी रीडिंग के साथ लिया, दोबारा में आपने कहीं और से, जैसे पहले आपने रीडिंग 0 से स्टार्ट कर दी, उसी की नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए आपने 1 से स्टार्ट कर दी, फिर नेक्स्ट रीडिंग लिए आपने 3 से स्टार्ट कर दी, तो इस तरह से क्या कहते हैं आपकी चेंज द कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने चेंज किया। इनकरेक्ट जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर हो गया कि मेजरिंग द वेट ऑफ अ बॉडी बाय स्प्रिंग बैलेंस से मान लीजिए हम मान रहे हैं और उसकी पोजीशन आई कुछ और स्केल पे, लेकिन जो ऑब्जर्वर है उसने कुछ माना कुछ और, आ रही है 25, जैसे वेट मशीन होती है वहां पे खड़े होते हैं तो जो निडल आती है मान लो 25 पे आ रही है, और 25 इतना स्मॉल स्मॉल लिखा होता है, 25 इधर 24, आप खुद कंफ्यूज हो तो आपने 25 मान लीजिए आंसर और आपने क्या किया उसको 24 ले लिया, तो दैट इज द मिस्टेक ड्यू टू द इनकरेक्ट जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इस तरह से आपकी ये सारी एरर्स हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ कैन वी मिनिमाइज द रैंडम एरर्स, जो आपकी रैंडम एरर्स होती है उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए पर्टिकुलर कुछ मेथड्स या फॉर्मूलाज हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर करेंगे। सो हियर वी हैव द मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग रैंडम एरर्स, कि अगर रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करोगे आप तो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं याद रखना, तो हम कम से कम 3 टर्न्स लेते हैं, रिपीटेशन 3 टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स में भी कम से मिनिमम 5, 1 टाइम में 5 रीडिंग्स लेते हैं, ताकि हम उन सबका एवरेज निकाल के एक प्रॉपर क्या कहते हैं क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है वो निकाल सके। तो जैसे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज एन एब्सोल्यूट एरर। अगर मैं एब्सोल्यूट एरर निकाली तो हम क्या करेंगे, जो ट्रू वैल्यू होगी यानी कि जी की वैल्यू 9.8 होती है ऑन द अर्थ, दैट वी नो, लेकिन हमने जो फिर मेजर करी उसको माइनस करोगे तो वो आपकी एब्सोल्यूट एरर आ गई कि कितनी एरर आई है किसी एक्सपेरिमेंट को करने में। मान लीजिए एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए है, एरर है इसलिए डेल लगा दें, डेल ए इक्वल टू ट्रू वैल्यू मान लीजिए हमारी ए थी और जो हमने मेजर की वो A1 हो गई। इसी तरह से आप क्या कहते हैं एन टर्म्स में देख सकते हो डेल्टा ए एन, अगर हमने एन वैल्यूज मेजर की हैं A माइनस ए एन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी एब्सोल्यूट एरर होगी। अब हम इसका मीन निकालेंगे और फिर वहां से फ्रैक्शनल करके उसकी परसेंटेज एरर निकालेंगे, क्योंकि हमने क्या कहते हैं स्टार्टिंग में कि एरर हमेशा किस में कंबाइन की जाती है, परसेंटेज एरर में। सो हियर वी हैव द मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब था जो हमने लास्ट लिखा था a बराबर मतलब डेल्टा a इक्वल टू, जो लास्ट मैंने क्या लिखा था डेल्टा a बराबर a माइनस A1, इसका मीन निकालना है। इसका इन सबका मीन निकालोगे कि हर एक किसी में कितनी एरर आई, हर एक कॉम्बिनेशन में हर एक मेजरमेंट में आपकी जो भी एरर आई उन सबका मीन निकाल के आप एरर मीन निकाल सकते हो। तो डेल्टा a हमने मान लिया मीन है, तो A1 A2 A3 सबकी और नंबर ऑफ
टर्म्स, ये मेजरमेंट, इसको समीशन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, 10th में पढ़ा होगा। 1/n तक जो था वो कॉमन ले लिया, i इक्वल टू 1 to n, यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे, और डेल्टा a i, ठीक है, i मतलब 1 2 रख सकते हो 1 से लेके n तक के नंबर्स में, ठीक। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर होता है कि रिलेटिव मतलब आप रिलेट करो, रिलेट का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल थी और जो एरर आई, मीन एरर और जो ओरिजिनल थी, दोनों को हमने रिलेट किया, यानी कि रेशियो निकाल दिया दोनों का। तो मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, उन दोनों का अगर रेशियो निकालोगे तो वो होगी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, और इसी में इंटू 100 कर दोगे, इसको चेंज कर दोगे तो इंटू 100 करोगे तो दैट विल बी योर परसेंटेज एरर, जैसे परसेंटेज निकालते हैं इंटू 100 करके, ठीक है। यहाँ आपकी एरर बेसिक खत्म होगी, उसके बाद एक नया टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जो कि आपके प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन वगैरह है, कि आप एरर को अगर किसी भी क्वेश्चन में एरर्स दी जाती हैं, प्रैक्टिकल में एरर्स आती हैं, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट देम। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, क्योंकि इसमें काफी लंबी हो गई है ऑलरेडी, 11 मिनट्स की तो है ही। इसके बाद तो एक नया वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर करके वीडियो डाल दूंगी, इसके बाद आपका ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इनको आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, दीज ऑल आर गिवन इन योर एनसीईआरटी, बट इन अ प्रॉपर लैंग्वेज जो आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर और फॉर द नेक्स्ट अपडेट। और जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा, आई विल शेयर विद वन क्वेश्चन शीट या वर्कशीट which will help for you. So please subscribe it, like the videos if you really love it, and share with your friends where I can't reach. Thank you so much.